باوقار مقدس علماء اسلام، شعراء اسلام، آج کی اس عظیم الشان جلسہ محبت میں تشریف رکھوا جملہ عاشقان مصطفیٰ علیہ السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاۃ والسلام علی نبیہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، صدق اللہ العلی العظیم، بلغنا رسوله النبی الامین الوکیل الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سارے جہاں کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، سیدہ فاطمہ الزہرا کے بابا جان، امام حسین کے نانا جان، حضور احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں جی لگا کر ہدیہ قابل مبارکباد ہے آپ حضرات۔ اس بستی کے بچے بوڑھے نوجوان جنہوں نے آج اپنے گھر والوں کی یاد میں نہیں بلکہ نبی کے گھر والوں کی یاد میں اس بزم محبت کا انعقاد کیا ہے۔ آپ اپنے باتیں کی نگاہوں سے ہماری جماعت کے مقتدر باوقار علماء کرام کو آپ دیکھ رہے ہیں، علامہ مشتاق صاحب قبلہ، مولانا ناصر القادری صاحب قبلہ، نقیب الہند حضرت مولانا عبداللہ امامی صاحب قبلہ، یہ کئی خوبیوں کے حامل ہیں، شاعر بھی ہیں، نقیب بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، پیر بھی ہیں اور ماسٹر بھی ہیں۔ جوہر ویشالی صاحب سے لے کر مختلف شاعروں کو آپ نے سنا۔ مقدر کی بات ہے، آپ چاہے 1:30 بجے صبح میں بلوائیے یا صلاۃ السلام کے بعد بلوائیے، ہر 1-2 روز بعد یہ حادثہ ہوتا ہے۔ ایسے نعت شریف صبح کو سنیے، زیادہ لطف آتا ہے، اور تقریر ہمیشہ جلسوں میں شاعروں سے پہلے سے 1-2 شاعر کو ڈراپ کر کے اس لیے رکھیے، شاعری اصل میں جب نیند آئے تب ہونی چاہیے، اور جب لوگ بیدار ہوں تب تقریر ہونی چاہیے۔ میں سو جاؤں صلی اللہ کہتے کھلے اللہ مصطفیٰ، لیکن اب اس پہ عمل ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ جلسے میں نوانہ میں تھا، شاعر صاحب علی شریف کے تھے انہیں ڈراپ آؤٹ کے رکھا گیا، اور شاعروں کا جلسہ اگر ہوتا ہے تو اس میں بھی خصوصی انتظام ہوتا ہے، تو شاعر لوگ سمجھ گئے، آپ لوگ بھی اب سمجھ لیجیے کہ جلسہ کرائیے، خطیبوں کو پہلے استعمال کیجیے، ہر ایک بڑے شاعر کو سب سے اخیر میں 2 بجے سے انہیں پڑھوائیے، 3 بجے تک، 4 بجے تک۔ حسین زندہ ہے دستور زندگی کی، شہید نہیں ہے۔ یہ سوچیے گا کہ میں کہوں گا سبحان اللہ کہیے، یہ وقت میرے پاس بہت کم ہے، تقریر کافی لمبی ہے اور میرے بعد بھی کئی خطبہ ہیں، لمبی مسافت طے کر کے میں آیا، آنے کا بھی حق ادا کرنا تھا۔ بیٹھے ابھی کیا بات ہے؟
حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح، شہید مرتے نہیں عام آدمی کی طرح، یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، حسین پھیلے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح، یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، حسین پھیلے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح۔ کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوئے نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ حضرات، جو ہی محرم الحرام کا چاند نکلتا ہے، پوری دنیا میں امام حسین کی یاد گونج جاتی ہے۔ کچھ لوگ جلسہ کرا کر امام حسین کو یاد کرتے ہیں، کچھ لوگ فاتحہ کرا کر امام حسین کو یاد کرتے ہیں، کچھ لوگ منقبت پڑھ کر امام حسین کو یاد کرتے ہیں۔ یاد کرنے والوں کی اپنی اپنی نوعیت ہے، لیکن کربلا پڑھنا بھی ضروری ہے اور کربلا سننا بھی ضروری ہے۔ باپ ہو تو بھی کربلا پڑھے، ماں ہو تو بھی کربلا پڑھے، بیٹا ہو تو بھی کربلا پڑھے، بیٹی ہو تو بھی کربلا پڑھے، امام ہو تو بھی کربلا پڑھے، مقتدی ہو تو بھی کربلا پڑھے، پیر ہو تو بھی کربلا پڑھے، مرید ہو تو بھی کربلا پڑھے، ظالم ہو تو بھی کربلا پڑھو، مظلوم ہو تو بھی کربلا پڑھو۔ اگر باپ کربلا پڑھے گا امام حسین کی طرح راہ خدا میں اولاد کٹانا سیکھ جائے گا، ماں کربلا پڑھے گی شہربانوں کی طرح راہ خدا میں بیٹے کا سر کٹانا سیکھ جائے گا، بہن کربلا پڑھے گی سیدہ زینب کا کردار سیکھ جائے گا، بیٹی کربلا پڑھے گی سیدہ سکینہ کا کریکٹر مل جائے گا، بیٹا کربلا پڑھے گا حضرت علی اکبر کا کردار سیکھ جائے گا، بھتیجا کربلا پڑھے گا حضرت قاسم کی زندگی مل جائے گی، بھائی کربلا پڑھے گا عباس علمدار کی وفاداری زندگی میں آ جائے گی، امام کربلا پڑھے گا مسجد چھوڑ کر تلواروں کے سائے میں امامت کرنے کا حوصلہ مل جائے گا، مقتدی کربلا پڑھے گا بوڑھی ابن یزید کا کریکٹر سیکھ جائے گا۔ میں کہتا ہوں اگر پیر کربلا پڑھے گا خانقاہ چھوڑ کر میدان میں اسلام بچانے کا سلیقہ آ جائے گا۔ ظالموں تم بھی کربلا پڑھو اور مظلوموں تم بھی کربلا پڑھو۔ اگر ظالم کربلا پڑھیں گے یزیدیوں کے انجام کو دیکھ کر ظلم کرنے سے توبہ کر لیں گے، اور مظلوم کربلا پڑھیں گے دنیا کی ہر باطل قوت سے ٹکرانے کا حوصلہ سیکھ جائے گا۔ اس لیے میاں کربلا سب پڑھے، کربلا یہ کوئی بناؤ کی افسانہ نہیں ہے، یہ کربلا اچانک آنے والا کوئی حادثہ نہیں ہے، کربلا اچانک وقوع پذیر ہونے والا واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ کربلا ہے جس کی خبر مصطفیٰ نے دی ہے، یہ کربلا ہے جس کی خبر جبریل امی نے دی ہے۔ دنیا میں امام حسین ہی تو ہے جو ابھی کربلا گئے نہیں ہے اور شہادت کی خبر آ گئی ہے۔ زمانہ جان رہا ہے امام حسین کی منزل شہادت ہے، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ ایمانداری سے بتائیں، سینے پہ ہاتھ رکھ کر سوچے، ہمیں ایک دن والا حسینی بننا ہے، ہمیں 10 دن والا حسینی بننا ہے، یا ہمیں لائف ٹائم حسینی بننا ہے؟ آج سماج میں کچھ لوگ پوچھتے ہیں مولانا صاحب امام حسین کہاں ہے؟ میں کہتا ہوں امام حسین کہاں نہیں ہے، مسجد نبوی میں چلو حسین ملیں گے، مسجد حرم میں چلو حسین ملیں گے، مسجد اقصی میں چلو حسین ملیں گے، دہلی کی جامع مسجد میں چلو حسین ملیں گے، آپ اپنی بستی کی مسجدوں میں چلو حسین ملیں گے، قرآن میں حسین ملیں گے، احادیث میں حسین ملیں گے، ممبر نور پہ حسین ملیں گے۔ دنیا میں ایک نماز ایسی لا کر دکھاؤ، سجدہ ہو، قیام ہو، رکوع ہو، سجود ہو،
نبی اور آل نبی پہ درود نہیں ہو۔ میری برادری کے ایک صاحب نے مجھ سے کہا مولانا صاحب آپ کو سنی صحیح العقیدہ ہے؟ میں نے کہا بے شک اس میں بھی کوئی شک ہے۔ کہا مجھے یہ بتائیے امام حسین کا ذکر محرم میں اتنا کیوں ہوتا ہے؟ امام حسین کے بارے میں میں کچھ جاننا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا دیکھیے آپ کی برادری میں لوگ نماز بہت پڑھتے ہیں۔ کہا ہاں پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا نماز میں درود پڑھتے ہیں؟ کہا پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں نے کہا یہ آل محمد کون ہے؟ کہا یہ میں نہیں جانتا۔ میں نے کہا کیوں آپ کے عالموں نے نہیں بتایا؟ کہا نہیں بتایا۔ میں نے کہا آل محمد ہی امام حسن ہے، آل محمد ہی امام حسین ہے، آل محمد سیدنا فاطمہ الزہرا ہے۔ نبی کی اولاد کو آل محمد کہا جاتا ہے۔ تب اس نے کہا میاں آج تک میرے مولانا صاحب نے نہیں بتایا، ہم امام حسین کا نام سن کر یہ سوچتے تھے شاید یہ صرف سنی لوگ امام حسین کی یاد مناتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں میاں، اللہ نے امام حسین کی یاد کا ایسا انتظام کر دیا، ایسا انتظام کر دیا، محرم آئے نہ آئے حسین یاد آتے رہیں گے، محرم آئے یا نہ آئے حسین یاد آتے رہیں گے۔ مسجد کسی کی ہو یاد حسین کی ہے، نماز کوئی پڑھے یاد حسین کی ہے، تلاوت کوئی کرے یاد حسین کی ہے، سجدہ کوئی کرے یاد حسین کی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں سنیوں یاد رکھنا، اگر صرف جلسہ کرو گے امام حسین ایک دن یاد آئیں گے، صرف فاتحہ کرو گے امام حسین 10 دن یاد آئیں گے، مگر میں کہوں گا آج کے اس جلسے سے پہلا پیغام لے کر جائیے۔ آج کے بعد گھر جا کر آپ اپنی بیوی سے کہیے گا، اپنے بچوں سے کہیے گا، اپنی بہو بیٹیوں سے کہیے گا، اپنے گھر والوں سے کہیے گا اے میرے گھر والوں میں چاہتا ہوں تم لائف ٹائم حسینی بن جاؤ، تیرا ہر لمحہ حسینی ہو، تیری صبح حسینی، تیرا دوپہر حسینی، تیرا شام حسینی، تیری رات حسینی۔ کہیں گے وہ ہم کیسے بنیں گے؟ کہہ دینا لائف ٹائم حسینی بننے کے لیے نمازی بننا پڑے گا۔ فجر پڑھو گے حسین یاد آئیں گے، ظہر پڑھو گے حسین یاد آئیں گے، عصر پڑھو گے حسین یاد آئیں گے، مغرب عشاء پڑھو گے حسین یاد آئیں گے، نماز تہجد کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے حسین یاد آئیں گے۔ میاں محرم آئے گا تو بھی حسین یاد آئیں گے، ربیع الاول رہے گا تو بھی آقا حسین یاد آئیں گے۔ اس لیے میں کہوں گا ہمیں ایک دن والا حسینی آپ بھی مبارکباد ہو، 10 دن والے حسینی آپ بھی قابل مبارکباد ہو، مگر حسین کو کربلا کی تپتی ہوئی ریگستان پہ 72 زخم کھا کر سجدہ کرنا پسند ہے۔ حسینی میں تم بھی زندگی میں سجدے کی عادت ڈال لو تاکہ ایک طرف سجدہ ہوتا رہے، ایک طرف نبی اور آل نبی کے درود ہوتا رہے، پتا چل جائے اللہ کو بغیر درود و سلام والی نماز پسند نہیں ہے، تو جس خدا کو نبی اور آل نبی پہ بغیر درود والی نماز پسند نہیں، نبی اور آل نبی کی محبت والا بغیر محبت والا مسلمان کا پسند ہوگا، انسان کا پسند ہوگا۔ اس لیے تعجب دونوں میں ہے، حسینی ہو نمازی نہ ہو یہ بھی تعجب ہے، اور نمازی ہو حسینی نہ ہو یہ بھی تعجب ہے۔ حسینی ہے تو نمازی بننا پڑے گا، نمازی ہے تو حسینی۔ کتنے لوگ حسینی بننا چاہتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے، کتنے لوگ حسینی بننا چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ سب حسینی بننا چاہتے ہیں۔ تھوڑی سی میں بالکل نہیں کہتا ہے نا، میرا موڈ بھی نہیں ہے کہ آپ کو بہت زیادہ کہوں کہ آپ پیچھے سے آگے آ جائیے۔ زبیر بھائی کی مہربانی، بچائے کیا کھڑے ہو کر شربت پی رہا؟ امام حسین کے نام کی شبیل امام حسین کربلا میں شریعت بچانے کے لیے گئے اور یہ لوگ سے شریعت کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ آپ نے کیا کسی عالم سے نہیں پوچھا کہ کھڑے ہو کر پانی پینا اسلام میں درست نہیں ہے؟ امام حسین کربلا کیوں اپنی اولادوں کی قربانی پیش کی؟
क्या बेटा कटाना आसान है? 6 माह के असगर के हुलगुल में तीर खिलाना आसान है? बच्चों को भूखे और प्यासे रखना आसान है? अपने नाना की खानका को छोड़ देना आसान है? आसान नहीं है तो सुन्नियों कद्र और समझो। इमाम हुसैन की यजीद से लड़ाई किस बात की थी? क्या इमाम हुसैन हुकूमत चाहते थे? अरे बोलिए ना, कुछ भी तो बोलिए। ए बच्चा, जरा सबको जगह आवेदन करो। ए बच्चा, आवेदन हो, माशाअल्लाह। मैं बेदार ही करने के लिए आया, मेरा काम ही है नौजवानों को बेदार करना। हाथ में कड़ा हो सुहाग उतर जा, हाथ में एक से ज्यादा अंगूठियां हो तो उतर जा, गले में सोने का चैन हो तो उतर जा। ये गला चैन पहनने के लिए नहीं, ये गला तो शहादत का जाम पीने के लिए है। इसलिए याद रखना, यजीद से लड़ाई इमाम हुसैन की न तख्त की थी न ताज की थी। इमाम हुसैन से लड़ाई यजीद की अकायद की भी नहीं थी। लड़ाई थी तो शरीयत की बका की लड़ाई थी। यजीद का किरदार खराब था, यजीद का कैरेक्टर खराब था। जब भी यजीद के बारे में बोलिए तो संभल कर बोलिए, यजीद तक बोलिए, खानदान तक मत पहुंचिए। यजीद तक बोलिए, और से सुनिएगा। यजीद शराबी, यजीद शरीयत का बागी। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, शरीयत की बगावत कल भी हो रही थी और शरीयत की बगावत आज भी हो रही है। तो कल जब हजरत अमीर माविया का बेटा यजीद शरीयत की बगावत करे तो हुसैन खानदान लेकर करबला में आ जाए। और अगर आज इंडिया में कोई शरीयत की बगावत करे तो क्या हम हुसैनियों को मैदान में आना चाहिए? आना चाहिए। अगर बोलिए आना चाहिए, आना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि इसकी शुरुआत यहीं से हो जाए। जितने नौजवानों के हाथ में कड़ा है, ये कड़ा पहनना शरीयत के खिलाफ है। आप अपने हाथों से कड़ा उतार लीजिए। एक और जितने नौजवान रबर पहने हैं, हाथ में धागा बांधे हैं, आप अपने हाथों से उसे उतार लीजिए। एक भी नौजवान नहीं पहनना है, 2-4 नौजवान तो नजर आ ही रहे हैं। अच्छा, गले में जितने के सिर्फ औरतों के लिए गले में चैन, गले में लॉकेट जायज है। जितने नौजवानों के गले में चैन है, आप आज की शब इमाम हुसैन की मोहब्बत में उतार लीजिए। माशाअल्लाह, एक से ज्यादा अंगूठियां पहने हैं, उतार लीजिए। माशाअल्लाह, बड़े नेक लोग हैं। लेकिन एक नौजवान भी खड़ा लेकर मेरे करीब नहीं आया ताकि मुझे पता चले कि नहीं मौलाना साहब, हमने वाकई में उतार दिया है। बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपसे कहना चाहूंगा, हम करबला जा नहीं सकते, कम से कम हम अपने घर वालों को शरीयत में चला तो सकते हैं। हम करबला नहीं जा सकते, हम अपने घर वालों को शरीयत में चला सकते हैं। और आपने क्या कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफुसकुम व अहलीकुम नार। ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, अगर कोई शराबी मिले, कहिए शराब हुसैन को पसंद नहीं है। अगर कोई जुआरी मिले, कहिए जुआ हुसैन को पसंद नहीं है। अगर किसी औरत के सर से दुपट्टा उतर जाए, कहिए बेगैर दुपट्टे वाली औरत इमाम हुसैन की मां को पसंद नहीं है, हुसैन की बहन को पसंद नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, आप ईमानदारी से बताइए, आपके इलाके में 40-50 तो पुरुष होते ही होंगे? अरे होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं ना। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप बताएं, अगर मज़ार शरीफ पे चादर न चढ़े, क्या कोई हम में से कोई गुनहगार होगा? कोई गुनहगार नहीं होगा। अगर बेटी के सर पे चादर न हो तो बाप गुनहगार होगा, बहन के सर पे चादर नहीं हो भाई गुनहगार होगा, बेटी के माँ के सर पे चादर नहीं हो बेटा गुनहगार होगा। आपको मानना पड़ेगा, हम बुजुर्गों
के मज़ारों पे चादरें इसलिए चढ़ाते हैं कि ये बुजुर्गों की अज़मत की निशानी है। तो बुजुर्गों के मज़ारों पे चादरें ये अल्लाह वालों की अज़मत की निशानी है। और हमारी कौम की बेटियों के सरों पे चादरें ये सैयदा खातूने जन्नत की चादरें तत्हीर की अज़मत की निशानी है। इसलिए मेरी कौम की बेटियों, सर से दुपट्टा उतरने न देना, आंखों से हया जाने न देना, इज्जत और आबरू की हिफाजत करना, किरदार और कैरेक्टर की हिफाजत करना। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, दुनिया वक्त के एतबार से इंसान वक्त के एतबार से अपनी कौम की हिफाजत करता है, अपने मजहब की हिफाजत करता है, उनको मिल्लत की हिफाजत करता है। अगर इमाम हुसैन पूरा खानदान लेकर मैदान करबला में नहीं जाते और अगर यजीद की बैत कर लेते तो शायद हर शख्स यही समझता शराबी भी पीर हो सकता है, चिंचम छाप भी पीर हो सकता है, कमर पर झोटा बढ़ाने वाला भी पीर हो सकता है, बेनमाजी भी पीर हो सकता है, शरीयत का बाकी भी हमारा पेशा हो सकता है। इमाम हुसैन ने ज़माने को दर्जे वफा दिया। सुन, याद रखना, ये आंख आसान नहीं है। पीर सब नहीं हो सकते, इमाम सब नहीं हो सकते, पेशवा सब नहीं हो सकते, रहबर सब नहीं हो सकते। कुरान पढ़ना और है, इमामत सबे इमामत और है, नमाज पढ़ना और है, मनसबे इमामत और है। हमारा इमाम वही होगा, हमारा पेशवा वही होगा जो शरीयत पे चलने वाला हो, जो शरीयत पे अमल करने वाला हो। इसलिए मैं आपसे भी कहूँगा, आप भी जिंदगी में शरीयत की पाबंदी कीजिए, ज़माने को दर्जे वफा दीजिए। नहीं मियाँ, हम शरीयत पे चलने वाले भी हैं, हम शरीयत की हिफाजत करने वाले भी हैं। आज समाज में इस किस्म के लोग आज भी घूम रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अरब के जो शयूख है और अरब के जो बादशाह है उन तक फलस्तीन के मजलूमों की आवाजें नहीं पहुंचती है? मगर अरब का राजा, अरब का बादशाह यजीद के नक्शे कदम पे चल पड़ा है। फलस्तीन का हर बच्चा जानता है हम शहादत के लिए ही पैदा हुए हैं। जैसे इमाम हुसैन को ये पता था मेरी जिंदगी का मकसद शहादत है, इसलिए हुसैन भूख है मगर करबला में डटे हुए हैं, प्यास है मगर करबला में अड़े हुए हैं। बच्चों की भूख और प्यास को देखकर भी इमाम हुसैन मैदान करबला में है। जैसा इम्तिहान वैसी तैयारी, ऐसा आपने नहीं देखा होगा। मैथ लेने वाला बच्चा केमिस्ट्री की तैयारी कर रहा हो, साइंस का बच्चा फिजिक्स की तैयारी कर रहा हो, कॉमर्स पढ़ने वाला साइंस की तैयारी कर रहा हो। मेरा और आपका हुसैन साबिरों का इमाम है, मेरा और आपका हुसैन शहीदों का इमाम है, मेरा और आपका हुसैन मैदान करबला में शहादत का जाम पीने वाला है। माँ ने तैयारी उसी तरीके से कराई है, पापा अली ने तैयारी उसी तरीके से कराई है। दुनिया में कोई क्या पढ़ेगा? हम और आप किसी बड़े दारुल उलूम में पढ़ सकते हैं, बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं, मगर ये हुसैन है जो पैदा हुए सैयदा फातिमा की गोद में और तालीम हासिल किए बाबुल इल्म की गोद में, तालीम हासिल किए मदीनतुल इल्म की गोद में। दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का नाम मदीनतुल इल्म है, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का नाम बाबुल इल्म है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म व अलीउल बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसके दरवाजे हैं। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप ईमानदारी से बताएं, ये नबी के घर वाले हैं, नबी के घर वाले, अल्लाह के नबी ने अपने घर वालों का साथी किसे बनाया है? अब्दुल्लाह इमामी साहब, अल्लामा मुश्ताक साहब, ये मुक़द्दस उलमा कहेंगे सुल्तान रज़ा, नबी ने अपने घर वालों का साथी कुरान को बनाया। हाथ उठाकर बोल दे, नबी ने घर वालों का साथी किसे बनाया? कुरान को। जोर से बोले, कुरान को। किसे बनाया? कुरान को। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आपने कभी सोचा और समझा नबी ने अपने घर वालों का साथी कुरान को क्यों बनाया? अल्लाह ने नबी का साथी कुरान को बनाया, नबी ने घर वालों का साथी कुरान को बनाया, और हम लोगों का साथी कुरान और रहने बैठे दोनों को बना दिया। कहा मैं दो वज़नी और भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, दोनों को मजबूती
से थामे रहना, कभी गुमराह नहीं होगे। सरकार ये दोनों कौन है? कहा एक जिसे कुरान कहा जाता है, दूसरा जिसे अहले बैत कहा जाता है। अगर इस्लाम पढ़ना हो कुरान में पढ़ लेना, और इस्लाम को देखना हो तो अहले बैत के किरदार को देख लेना। अब साहब याद रखिएगा, मार्केट में दो किस्म के लोग हैं, एक वो जो सिर्फ सहाबा से प्यार करते हैं और अहले बैत की शान में गुस्ताखियां करते हैं, एक वो जो सिर्फ अहले बैत से प्यार करते हैं, सहाबा की शान में गुस्ताखियां करते हैं। मगर मेरे आका हुसैन आप तो सहाबी भी हैं और आप अहले बैत भी हैं, आप तो सहाबी भी हैं और आप अहले बैत भी हैं। साहब याद रखिएगा, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा सिर्फ सहाबा से प्यार करें, अहले बैत से न करें, ये खारजी कहा जाता है, जहन्नम इनके लिए भी है। और जो सिर्फ अहले बैत से प्यार करे, सहाबा से न करे, इन्हें नाफसी कहा जाता है, जहन्नम इनके लिए भी है। मगर करम है बरेली के रज़ा का, जिन्होंने हमें खारजी बनने दिया, नाफसी बनने दिया, बल्कि मुज़्ज़ाए जाफ़ेज़ा दिया। अहले सुन्नत का है बेड़ा, पाक सहाबे हुजूर, नजम है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की फरमाते हैं सुनो, सिर्फ सहाबा से प्यार करना ये खारजियत की पहचान है, और सिर्फ अहले बैत से प्यार करना ये नाफसियत की पहचान है, और दोनों से प्यार करना ये अहले सुन्नत वल जमात। करबला कॉन्फ्रेंस हज़रत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान सादुल्लाह सिवानी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिस जात में सहाबा का इश्क भी शामिल हो और अहले बैत का प्यार भी शामिल हो, उन्हें ही इमाम हसन व हुसैन कहा। चलिए हम सहाबा वाले भी हैं और हम अहले बैत वाले भी हैं, तो एक हाथ सहाबा के नाम पर और एक हाथ अहले बैत के नाम पे उठाएं और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, और थोड़ा प्यार से बोले या हबीब अल्लाह। तवज्जो का तालीम हो। साहब आपके पास भी घर है और आपके पास भी घराना है, जुबैर के भाई के पास भी घर और घराना है। आप जुबैर भाई पक्के सच्चे आशिक आदमी है बेचारे, सुबह से लेकर शाम तक साल में एक दो बार इनकी मोहब्बतें फकीर आज़ाद की दहलीज तक हाजिर आया। मैं आपसे कहना चाहूंगा नबी के पास भी घर और घराना है, आपके पास भी घर और घराना है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। जाए याद रखिएगा, आला हजरत उम्मत सरा होते हैं, क्या बात रज़ा चमनस्ताने करम की, ज़हरा है गली जिसमें है हुसैन व हसन कुल। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, नबी ने अपने घर वालों का साथी कुरान को बनाया, कोई तो मकसद है, कोई तो बात है, कोई तो राज है। मियां ये कुरान है क्या? आप कहेंगे कुरान एक किताब है, कुरान हिदायत का नूर है, कुरान कहता है हुदल लिल मुत्तकीन, तक़वा वालों के लिए, डरने वालों के लिए हिदायत हो। अब आपको मानना पड़ेगा मियां ये कुरान ही तो है जो सहाबा का साथी है, कुरान ही तो है जो अहले बैत का साथी है। यानी नबी ने अपने घर वालों का साथी किताब को बनाया, किताब नबी का साथी, किताब सहाबा का साथी, किताब अहले बैत का साथी, किताब फुक़हा का साथी, किताब फुक़हा का साथी, किताब मुहद्दिसीन का साथी, किताब मुफस्सिरीन का साथी, किताब साहब उलमा का साथी, किताब फुज़ला का साथी, किताब खुतबा का साथी, किताब इमाम का साथी, किताब दुनिया में जितने कामयाब लोग गुजरे हर इंजीनियर का साथी किताब है, हर डॉक्टर का साथी किताब है, हर साइंटिस्ट का साथी किताब है, हर प्रोफेसर का साथी किताब है, हर आईपीएस अफसर का साथी किताब है, हर मास्टर का साथी किताब है, हर तालीम याफ्ता शख्स का साथी किताब है। सुल्तान रज़ा पूछना चाहेगा, दुनिया में जितने कामयाब लोग गुजरे, चाहे वो दीनी एतबार से कामयाब हो या दुनियावी एतबार से कामयाब हो, सबने अपनी जिंदगी का साथी जिसे बनाया, उस साथी का नाम क्या है? खुदावंद महाकुशा में क्या नाम है? किताब। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, नबी का साथी किताब है, सहाबा का साथी किताब है, अहले बैत का साथी किताब है, दुनिया के हर कामयाब
शख्स का साथी किताब है, तो आज हमारी कौम के नौजवान लड़के और लड़कियों ने किताब की जगह मोबाइल फोन को जिंदगी का साथी कैसे बना दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप ईमानदारी से बताओ कि आपको ऐसा नहीं लगता कि आज हमारे नौजवान अपनी जवानी का मिसयूज कर रहे हैं? क्या आपको ऐसा नहीं लगता हमारी कौम की लड़कियां सैयदा ज़ैनब के किरदार को फॉलो करने के बजाय दुनिया में ऐसे इज्जत में डूबी हुई लड़कियों को मोबाइल के जरिए फॉलो कर रही है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता ये छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र किताबें पढ़ने की थी आज वो मोबाइल की दुनिया में गुम है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता हमारी कौम के वो बच्चे जो चाहे मदारिस में पढ़ने वाले हो या स्कूल में पढ़ने वाले हो, जिन्हें अपने इम्तिहान और मुस्तकबिल की तैयारी के लिए किताबें पढ़ने की जरूरत थी, आज वो 12 घंटा मोबाइल पे गुजार रहे हैं, 10 घंटा सोशल मीडिया पे गुजार रहे हैं? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारी कौम का मुस्तकबिल में बेड़ा गर्क होने वाला है? साहब, इसकी वाहिद वजह क्या हो सकती है? आज कौम की बेटियां मुर्तद हो रही है, वजह मोबाइल है। आज इंस्टाग्राम पे नौजवान नाच रहे हैं, वजह मोबाइल है। आज हमारी कौम के नौजवान लड़कियां टुकड़े टुकड़े करके गटर पे डाली जा रही है, वजह मोबाइल है। आज नौजवान डिप्रेशन के शिकार है, वजह मोबाइल है। आज हमारी कौम की नौजवान लड़के और लड़कियां तालीमी मामलात में बहुत पीछे है, वजह ये मोबाइल फोन है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, ऐ मेरी कौम का नौजवान, अगर आज हमने इस पे कंट्रोल नहीं किया और आज हमने मोबाइल पे अंकुश नहीं लगाया और हमने अपनी औलादों के दिलों में किताब की मोहब्बत का चिराग नहीं जलाया, तो हमारी औलादों को बर्बाद होने से कौन रोक सकता है? इसलिए मेरी कौम के शहजादों, याद रखना, जिंदगी में मैं ये नहीं कहता कि मोबाइल रखना गुनाह है, मगर मोबाइल में गलत चीजों का देखना गुनाह है। मोबाइल का मिसयूज मत कीजिए, किसी जिंदगी का मिसयूज कीजिएगा, जिंदगी बर्बाद। वक्त का मिसयूज कीजिएगा, अपनी जिंदगी बर्बाद। इसलिए मोबाइल का मिसयूज करने वाले उनकी जिंदगी में आबादी नहीं आ सकती है। दुनिया में जितने कामयाब लोग गुजरे उनके पास भी 24 घंटे ही थे और आपके पास भी 24 घंटे ही है। मगर आपने सुना होगा, हमारे यहाँ लोग ये जानते हैं, शायर साहब जो खड़े हुए, लंबी चौकी शायरी हुई और हमने खूब नारा लगाया, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। आप भी समझते हो, शायर मसलके आला हजरत शायरी का ही नाम है, शायर मसलके आला हजरत खूब नोट उड़ाने का ही नाम है, शायर मसलके आला हजरत किसी शायर को खूब नवाज देने का ही नाम है। शायर को नवाजिए सुभान अल्लाह, शायरी सुनिए सुभान अल्लाह, मगर आला हजरत का मसलक तरीके को कहते हैं और आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी को कहते हैं। आला हजरत दुनिया सुन्नियत के इतने बड़े आलिम के 14वीं सदी से लेकर आज तक उतना बड़ा आलिम अरब से लेकर अजम तक नजर नहीं आता। सुल्तान रजा आपसे पूछना चाहता है, आला हजरत के पास भी 24 घंटे थे, मगर उन्होंने अपने वक्त का मिसयूज नहीं किया, उन्होंने अपने वक्त का गलत इस्तेमाल नहीं किया। हमारी तरह 7 घंटा सोशल मीडिया पर, 5 घंटा इंस्टाग्राम पर, 2 घंटा फेसबुक में, बाकी सोने में और खाने में नहीं गुजारा, बल्कि आला हजरत ने 24 घंटे में 21.5 घंटा पढ़ा और पढ़ाया है और 2.5 घंटा आराम किया है। जो 21.5 घंटा पढ़ता और पढ़ाता है वो पढ़कर हजरत नहीं बल्कि दुनियाए सुन्नियत का आला हजरत बनता है। कौम के नौजवानों, आज के जलसे से पैगाम लेकर जाओ, नबी ने अपने घर वालों का साथी किताब को बनाया है, हम भी अपने घर वालों का साथी पूरा मजमा बोले, अपने घर वालों का साथी किताब को बनाएंगे और अपने बच्चों को बताएंगे। तुम आला हजरत की तरह किताब नहीं पढ़ सकते, तुम गौसे आजम की तरह किताब नहीं पढ़ सकते, तुम ख्वाजा गरीब नवाज की तरह किताब नहीं पढ़ सकते, तो तुम 22 घंटा मत पढ़ो, 20 घंटा मत पढ़ो, कम से कम 14 घंटा अपना कीमती वक्त तालीम के पीछे लगा दो, एजुकेशन के पीछे लगा दो। जिस दिन हमारी कौम के नौजवान लड़के लड़कियां अगर 14 घंटा अपना कीमती
वक्त तालीम को देंगे, इंशाअल्लाह डॉक्टर आपके घर में होंगे, इंजीनियर आपके घर में होंगे, प्रोफेसर आपके घर में होंगे, साइंटिस्ट आपके घर में होंगे, आलिम आपके घर में होंगे, हाफिज़ कुरान आपके घर में होंगे। जब नौजवान पढ़े लिखे होंगे, ज़हन भी साफ सुथरा होगा और आपके घर का माहौल भी अच्छा होगा और माशरा भी साफ सुथरा हो जाएगा। आप सोचते होंगे मौलाना ये करबला से रिलेटेड तकरीर नहीं है, हम लोग तो शहादत सुनने आए थे। मैं आपको कहूँगा नहीं, मेरी तकरीर करबला से रिलेटेड ही है। इमाम हुसैन करबला में इस्लाम बचाने गए थे, इमाम हुसैन करबला में शरीयत बचाने गए थे। मैं आपको कहना चाहूँगा मियाँ, शरीयत बचाने के लिए इल्म की जरूरत है। आप ईमानदारी से बताइए, आप पूरा इस्लाम नहीं बचा सकते, कम से कम मुल्क बचाइए, मुल्क नहीं बचा सकते जिला बचाइए, जिला नहीं बचा सकते गांव बचाइए, गांव नहीं बचा सकते खानदान बचाइए, खानदान नहीं बचा सकते अपना घर बचाइए, अपना घर में भी सबको नहीं बचा सकते, कम से कम अपने आप को बचाइए। बेशक सुभान अल्लाह, बचाइए। इमाम हुसैन ने बचाना सिखाया है, बचाइए। अब बचाने के लिए क्या करेंगे? आप ये बस्ती है, इस बस्ती की हिफाजत के लिए क्या चाहिए? ईंट चाहिए, कमान चाहिए, तलवार चाहिए। नाना मियां, ये दौर तीरों कमान का नहीं है, ये दौर तलवार का नहीं है, ये दौर लश्करे जरदार का नहीं है। फिर आपकी बस्ती के लोग बचेंगे कैसे? आपके जान की हिफाजत होगी कैसे? आपकी इज्जत और आबरू की हिफाजत होगी कैसे? मियां, जमाना हमें पसमानदा कह रहा है, जमाना हमें अल्पसंख्यक कह रहा है, जमाना हमें अक़लियत कह रहा है। आप कितना ही पढ़ लीजिए मगर है अक़लियत, आप कितना ही बुरा बोल लीजिए मगर है आप पसमानदा, आप कितना ही तरक्की कर लीजिए मगर है आप अल्पसंख्यक। सुल्तान रज़ा पूछना चाहता है, अगर तादाद की वजह से हमें अल्पसंख्यक कहा जाता है तो तादाद आज हमारी कम है या इमाम हुसैन करबला में गए थे जब हमारी तादाद कम थी? आपको कहना पड़ेगा करबला में 72 ही गए थे मगर 72 का ईमान इतना मजबूत था कि उनकी ईमान की मजबूती आज तक इस्लाम की हिफाजत के लिए काफी है। अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह। चलिए बेशक कम से कम एक नौजवान है, इसे नारा लगाना नहीं आता लेकिन आज दिल में हौसला जागा है। मैं कहूँगा मेरी कौम का नौजवान, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमारे उलमा मौजूद है। मैं तो तकरीर करके चला जाऊंगा लेकिन असल खिदमत उलमा से लीजिए। आप उनकी सोहबत में बैठिए, नारा लगाना भी सीखिए, आज़ान देना भी सीखिए, तालीम और ताल्लुक का सिलसिला बरकरार रखिए। अब इस बस्ती की हिफाजत के लिए क्या चाहिए मैं आपको बताना चाहूँगा। आपकी बस्ती की हिफाजत के लिए असलहे की जरूरत नहीं है, बम बारूद की जरूरत नहीं है, तलवार की जरूरत नहीं है। आपकी गांव की हिफाजत के लिए 10 पढ़े लिखे नौजवानों की जरूरत है। सुभान अल्लाह, बेशक 10 पढ़े लिखे हुसैनी नौजवान मिल जाए। क्या कहा था गांधी जी ने, अगर एक हुसैन मिल जाते तो मैं भारत को 1947 में नहीं बल्कि बहुत पहले आजाद करा लेता। इसलिए सुन्नियों को गौर से याद रखना और अपनी जिंदगी में इनकलाब लाने की कोशिश करते रहना। याद रखना, आप इस बस्ती की हिफाजत के लिए आपको लश्करे जरदार की जरूरत नहीं, 10 पढ़े लिखे हुसैनी नौजवान की जरूरत है। आला हजरत ने आज से 100 बरस पहले ये फार्मूला दिया, इमाम हुसैन के नक्शे कदम पे चलकर दुनिया वालों तो हमारी कौम के जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, याद रखना उनकी तालीमी सलाहियतों की जांच कराई जाए, पता लगाया जाए आपके बच्चे पढ़कर क्या बनने के लायक है, डॉक्टर बनने के लायक है, इंजीनियर बनने के लायक है, प्रोफेसर बनने के लायक है, मास्टर बनने के लायक है। ये तो दुनियावी एतबार से हो गया, जज बनने के लायक है, दीनी एतबार से आलिम बनने के लायक है, हाफिज बनने के लायक है, मुहद्दिस बनने के लायक है, मुफस्सिर बनने के लायक है। जो बनने के लायक है वो नासिब पैसा खर्च करके कौम के उन शहजादों को बना दिया। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।